Hello, welcome friends. Myself Bhupesh Bhatt, PT Physical Education, and today's video is for class 12th student for the subject Physical Education. In earlier video, we discussed about two topics of our first chapter, Planning in Sports. Topics were meaning and objectives of physical education, and second, various committees and its responsibilities. Now, in this video, I will teach you about third point. This is tournament. A series of sports competition in which a team finally wins and rest of the participating teams lose the matches. It depends on various factors, that is number of participating teams, availability of grounds and equipments, number of days and funds. टूर्नामेंट वह खेल प्रतिस्पर्धा है जिसमें बहुत सी टीम प्रतिभाग करती हैं और जो टीम सबसे मजबूत होती है अंत में उसे विजेता घोषित कर दिया जाता है. Our next topic is importance of tournament. First, development of sports skills. Second, the propaganda of sports. Third, helpful in selection of players. Fifth, development of national and international integration. And last one is development of social qualities. Now we discussed here all these points one by one. The first one is development of sports skills. By participating in tournament, sportsmen develop various skills of sports. He also improve techniques and tactics. अलग अलग प्रतियोगिता में प्रतिभा करने से खिलाड़ी के खेल में निरंतर सुधार आता है और वह नई नई कलाएं सीखता रहता है. नेक्स्ट, प्रोपोगेंडा ऑफ स्पोर्ट्स टूर्नामेंट. Sports tournament are helpful in publishing the sports. When a tournament of a new sports is organized, the spectators come to know about that sports. Thus, it creates interest in that sports. प्रतियोगिता कराने का यह मकसद भी होता है कि दर्शक खेल के बारे में कई जानकारियां प्राप्त करते हैं, जिससे खेल के प्रति उन लोगों का रुझान काफी बढ़ता है. नेक्स्ट इज हेल्पफुल इन द सिलेक्शन ऑफ प्लेयर्स. In a tournament, good players can be selected easily by observing their performance in the tournament. The players who give good performance can be selected for upper level tournament. प्रतियोगिताएं कराने से अच्छे खिलाड़ी के चयन में आसानी होती है ताकि अच्छे खिलाड़ी को आगे बढ़ने के अवसर प्रदान किए जाएं ताकि उसकी खेल प्रतिभा में निरंतर और ज़्यादा सुधार आता जाए. नेक्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ national and international integration. It is helpful in developing national integration as well as international unity and brotherhood. टूर्नामेंट अलग अलग देशों के बीच भाईचारा और एकता के निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है. अलग अलग देश के खिलाड़ी को भिन्न भिन्न देशों की संस्कृति को भी जानने का मौका मिलता है. Our last point is development of social qualities. Social trait such as tolerance, cooperation, brotherhood, discipline, etc. are developed among the player through sports tournament. टूर्नामेंट में प्रतिभा करने से खिलाड़ियों के अंदर भाईचारा, एकता, नियम पालन करना, दया, ईमानदारी, इन सब चीज़ों का विकास होता है और एक दूसरे के प्रति उनका विश्वास भी बढ़ता है. Our next topic is types of tournament. There are 4 types of tournament. First is knockout tournament, second league tournament, third combination tournament, and fourth challenge tournament. Now we discuss knockout tournament. In this type of tournament, if a team is defeated once, it automatically gets eliminated. Only the winner team continue in the competition. No second opportunity is given to the defeated team. It is the fastest method to know about the winner team in the tournament. इसमें जीतने वाली टीम के अलावा सभी टीमें एक एक करके टूर्नामेंट से बाहर होती हैं, अर्थात जो टीम पहला ही मैच खेलने पर हार जाती है उसे पुनः अवसर प्रदान नहीं किया जाता. जो टीम लगातार जीतती जाती है अंत में उसे विजेता घोषित कर दिया जाता है. नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एडवांटेज ऑफ नॉकआउट टूर्नामेंट. फर्स्ट इज इकोनॉमिकल. The tournament is less expensive because the team which gets defeated is eliminated from the tournament. इस प्रकार के टूर्नामेंट में ज़्यादा खर्चा नहीं आता क्योंकि जो टीम हारती है
वह टूर्नामेंट से प्रतियोगिता से उसी समय बाहर हो जाती है। नेक्स्ट इज enhancing standard of sports. The knockout tournament is helpful in enhancing the standard of sports because each team tries to present the best performance to avoid defeat. नॉकआउट प्रतियोगिता में प्रत्येक टीम अथवा खिलाड़ी अपना बेहतरीन प्रदर्शन देने की कोशिश करता है। आप ये कह सकते हैं जो टीम अपना बेहतरीन प्रदर्शन देगी उसे हार का सामना नहीं करना पड़ेगा और वह प्रतियोगिता में जीत दर्ज करेगी। Next is save time. Due to less number of matches, it requires less time to complete the tournament. नॉकआउट प्रतियोगिता में समय की भी बचत होती है क्योंकि इसमें मैचों की संख्या कम होती है। लास्ट वन इज लेस नंबर ऑफ ऑफिशियल्स. लेस नंबर ऑफ ऑफिशियल्स आर रिक्वायर्ड इन ऑर्गेनाइजिंग दिस टूर्नामेंट. इस प्रतियोगिता में कम ऑफिशियल्स की जरूरत होती है क्योंकि मैचों की संख्या कम होने से ऑफिशियल्स की जरूरत ज्यादा नहीं पड़ती. Our next topic is disadvantage of knockout tournaments. The first one is sometimes good teams are eliminated in the first and second round. नॉकआउट टूर्नामेंट में कभी-कभी बेहतरीन टीम का प्रदर्शन अच्छा नहीं होने की वजह से वह टीम शुरू में ही बाहर हो जाती है, जो इसका सबसे बड़ा नुकसान है. नेक्स्ट वन इज देयर आर चांसेस ऑफ वीक टीम्स टू इंटर फाइनल राउंड. कभी-कभी नॉकआउट टूर्नामेंट्स में कमजोर टीम की किस्मत अच्छी होने से वह फाइनल्स में पहुंच जाती है, जिससे खेल का महत्व तो नहीं रह जाता क्योंकि अच्छी टीम शुरुआत में ही बाहर हो जाती है. लास्ट पॉइंट इज स्पेक्टेटर्स मे नॉट हैव इंटरेस्ट इन फाइनल्स. कमजोर टीम का फाइनल में प्रवेश की वजह से लोगों का उत्साह नहीं रहता और लोगों की संख्या कम हो जाती है और खेल के प्रति भी लोगों का रुझान कम हो जाता है. नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज लीग टूर्नामेंट्स. इसको राउंड रॉबिन टूर्नामेंट्स भी कहा जाता है. देयर आर टू टाइप्स ऑफ लीग टूर्नामेंट, सिंगल लीग टूर्नामेंट एंड डबल लीग टूर्नामेंट. नाउ वी डिस्कस हियर अबाउट single league tournament. In single league tournament, each team plays with every other teams once, irrespective of victory or defeated. सिंगल लीग टूर्नामेंट में प्रत्येक टीम दूसरी टीम के साथ एक बार मैच खेलती है, चाहे वह हारे या जीते. द फॉर्मूला ऑफ सिंगल लीग टूर्नामेंट इज n-1/2. n नंबर ऑफ टीम्स को इंडिकेट करता है. फॉर एग्जाम्पल, इफ नंबर ऑफ टीम्स इज 8, इट मीन्स n = 8. अब हम n को फॉर्मूला में पुट करेंगे. n मीन्स 8. 8 - 1/2 equals to 8 into 7/2. It means 56/2 is equal to 28. Then total number of matches will be 28. सिंगल लीग टूर्नामेंट में अगर टीमों की संख्या 8 है तो टोटल नंबर ऑफ मैचेस 28 होंगे. नेक्स्ट इज डबल लीग टूर्नामेंट. इन डबल लीग टूर्नामेंट ईच टीम प्लेज विथ अदर टीम ट्वाइस irrespective of victory or defeated. डबल लीग टूर्नामेंट्स में प्रत्येक टीम दूसरी टीम के साथ 2 बार मैच खेलती है, चाहे वह हारे या जीते. द फॉर्मूला इज n-1/2. n मीन्स नंबर ऑफ टीम्स. फॉर एग्जाम्पल, अगर नंबर ऑफ टीम्स 8 है मीन्स n = 8. नाउ वी पुट 8 in place of n. 8 - 1 equals to 8 into 7 equals to 56. डबल लीग टूर्नामेंट में अगर नंबर ऑफ टीम्स 8 है तो मैचेस की संख्या 56 होगी. नाउ आवर नेक्स्ट पॉइंट इज एडवांटेज ऑफ लीग टूर्नामेंट. ओनली स्ट्रॉन्ग एंड डिजर्विंग टीम गेट्स विक्ट्री इन द टूर्नामेंट. लीग टूर्नामेंट में स्ट्रॉन्ग और डिजर्विंग टीम ही विनर होती है. नेक्स्ट, charm of the tournament is still maintained throughout the tournament. मैच इंटरेस्टेड होने की वजह से स्पेक्टेटर्स का इंटरेस्ट टूर्नामेंट में लास्ट तक बना रहता है क्योंकि इसमें स्ट्रॉन्ग और डिजर्विंग टीम्स
का प्रदर्शन बेहतरीन रहता है। लास्ट पॉइंट, good teams or players will continue throughout the tournament, so the chances of selection of good players is still alive. स्ट्रॉन्ग और डिजर्व टीम का प्रदर्शन अंत तक अच्छा रहता है, जिस वजह से खिलाड़ियों के चयन में कोई परेशानी नहीं होती। नाउ वी डिस्कस्ड अबाउट डिसएडवांटेज ऑफ लीग टूर्नामेंट्स। फंड्स आर रिक्वायर्ड मोर। टूर्नामेंट का लंबे समय तक चलने की वजह से ज़्यादा फंड्स की ज़रूरत होती है, ताकि खिलाड़ियों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो। टाइम इज रिक्वायर्ड मोर। मैच ज़्यादा होने की वजह से टाइम ज़्यादा लगता है। नेक्स्ट, रिजल्ट कम्स लेट। मैच की अधिकता होने की वजह से रिजल्ट आने में देरी होती है, क्योंकि मैचेस की संख्या ज़्यादा होती है। लास्ट पॉइंट इज रिक्वायरमेंट ऑफ मोर नंबर ऑफ ऑफिशियल्स एंड नंबर मोर नंबर ऑफ ग्राउंड्स। लीग टूर्नामेंट्स में टीम्स और मैचेस ज़्यादा होने की वजह से ऑफिशियल्स और ग्राउंड्स की ज़्यादा ज़रूरत होती है, ताकि मैच को टाइम से संपन्न किया जा सके। Our next topic is combination tournament. If the number of participating teams is more, then in this tournament some rounds are played on basis of knockout and some are played on basis of league. कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट में अगर टीम्स की संख्या ज़्यादा होती है तो कुछ मैचेस नॉकआउट बेसिस में होते हैं और कुछ मैचेस लीग बेसिस में कराए जाते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट्स। नॉकआउट कम नॉकआउट, नॉकआउट कम लीग, लीग कम नॉकआउट and league come league. Our last topic is challenge tournament. This type of tournament comes handy when there are 1-to-1 contest and there are two players on each side. One player challenges the other and the other players accept the challenge. Game in which such tournaments are held are boxing, tennis, table tennis, badminton, etc. चैलेंज टूर्नामेंट में एक प्लेयर दूसरे प्लेयर को चैलेंज या चुनौती देता है और दूसरा प्लेयर उस चुनौती को एक्सेप्ट कर लेता है, उसे चैलेंज टूर्नामेंट कहते हैं। इस वीडियो में हमने टॉपिक्स को डीपली कवर किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम नॉकआउट और लीग टूर्नामेंट्स के फिक्सचर ड्रॉ करना सीखेंगे। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।